Let's start the session. गीता जी और Yes. इंट्रोडक्शन देने से स्टार्ट करेंगी. Thank you. Good afternoon, everyone. Namaste, everyone. Welcome to Yoga for Migraine workshop. First, let's see something about Arambha Yoga Institute. Arambha Yoga Institute is accredited by Yoga Certification Board, that is YCB, Ministry of Ayush, Government of India. It is an ISO certified institute for the international standard that specifies requirements for a quality management system, that is QMS. And it is running as an educational wing of Arambha Yoga Foundation, a public charitable trust registered under Bombay Charitable Trust Act. We work to enlighten the world, especially young aspirants, with quality education, training, and guidance in yoga teaching, and introduce them to the real essence of yoga and benefits of introducing and applying yogic practices to their lifestyle, resulting in improved life balance of an individual, hence turning up a better society. Now, our today's faculty is Yugandhara Barve. She is a graduate from University of Pune. She has done home science graduation. She is a special educator, a teacher. She has completed YCB level 2 under the guidance of Arambha Institute, and she has done PPYG, that is prenatal and postnatal yoga from Arambha Institute only. So let's welcome Yugandhara ji. She will conduct again. Yes, Yugandhara ji, you are host. Thank you, Geeta ji. Thank you. Welcome everybody. I will start my presentation now. Today's my topic for this camp is migraine. Migraine. We are going to talk about migraine for few days. For 5 days, this workshop will be from Monday to Friday. Yoga for migraine. Okay. Now, what is migraine? A migraine is a headache that can cause severe throbbing pain or pushing sensation, usually on one side of your hand. It is accompanied by nausea, vomiting, extreme sensitivity to light. माइग्रेन अटैक्स आपको 2 दिन से 15 दिन तक रह सकते हैं और एंड दीज अटैक्स आर वेरी बैड. ये अटैक्स आपके डेली एक्टिविटीज में भी आपको ट्रबल करते हैं. डेली एक्टिविटीज करने में आपको बहुत ज्यादा ट्रबल होता है. आप कर ही नहीं सकते हो, इतना पेन होता है आपके हेड में. नाउ टाइप्स ऑफ हेडेक. देयर आर इनिशियली 150 टाइप्स ऑफ हेडेक्स. इसमें 2 प्रकार रहते हैं, दैट इज प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक. ना माइग्रेन आज जो हम पढ़ाई करने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं जिसके बारे में, वो माइग्रेन प्राइमरी हेडेक्स में आता है. टेंशन हेडेक भी रहता है और क्लस्टर हेडेक भी रहता है प्राइमरी में. तो प्राइमरी में क्या होता है, एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल कंडीशन के वजह से ये कॉज होता है. इसमें आपको क्लिनिकली डायग्नोस नहीं होता है. इसका मतलब क्या है, आपको इमेजिनेशन स्टडी रहता है इसमें, और फिर वो आपको डायग्नोस, आपके सिम्टम्स सुनते हैं. आपको जैसे जैसे आप एक एक सिम्टम्स बताते जाते हो, वैसे वैसे वो सुनते सुनते फिर आपको बताते हैं कि आपको माइग्रेन है, टेंशन हेडेक है या क्लस्टर है. और सेकेंडरी हेडेक्स में आपको आता है साइनस, हाइपरटेंशन and TMG disorders. Okay, now next is types of migraines. Migraine with aura रहता है and migraine without aura. Okay, now migraine with aura में क्या आता है, headache that comes in stages. You may experience nausea, fatigue, irritability, sensitivity to light. टिपिकली ऑन लुक एक ही स्पॉट पे आपको हेडेक जैसा फील होता है, बहुत सारा दर्द फील होता है, वो अनबेरेबल रहता है.
कई कई लोगों का बीपी शूट होता है, उनको समझ में नहीं आता है इस टाइम पे मैं क्या करूं। लाइट लगाओगे तो दर्द होगा, साउंड ज्यादा सुनाई देगा तो आपको दर्द होगा, आपको उस समय पे समझ में नहीं आता है ना। माइग्रेन विथ ऑरा, इसमें क्या रहता है, डिस्टरबेंस फॉर आपको 30 मिनट के लिए माइग्रेन के सिम्टम्स आने चालू करते हैं, और 30 मिनट्स के लिए प्रायर टू जो स्ट्रोक जब आपको आएगा उसके 30 मिनट के पहले माइग्रेन के सिम्टम्स आपको आने लगते हैं। आपके स्पीच में वो प्रॉब्लमेटिक करता है, टेस्ट में आता है, और स्मेल में भी आपको धीरे धीरे से इसका इफेक्ट समझने लगता है। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ माइग्रेन में आगे जाके हम देखेंगे क्या है। माइग्रेन विथ आउट हेड पेन, इसमें क्या होता है, आपको माइग्रेन के सिम्टम्स तो है पर आपको वो साइलेंट हेडेक रहेगा। आपको समझ में आता है कि मुझे कुछ तो भी हो रहा है, पर एक्चुअली आप बता नहीं सकते हो। ओनली इफ यू नो द सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन विदाउट हेडेक तो आप बता पाओगे कि आ रहा है, मुझे स्ट्रोक समझ में आ रहा है, आई एम गोइंग टू समथिंग, somebody is telling you मुझे कुछ तो भी हो रहा है, मुझे, पर मैं बता नहीं सकता मुझे क्या हो रहा है। जस्ट लिसन टू देम। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज हेमिप्लेजिक माइग्रेन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको टेम्पररी पैरालिसिस की जैसा होगा, एक साइड आपकी पूरी पैरालाइज होने की जैसे आपको होगा। इसमें न्यूरोलॉजिकल और सेंसरी चेंजेस होते हैं आपके बॉडी में। इसमें आपका विजुअल ऑरा होगा, आपको टेम्पररी विजन लॉस होगा, विजुअल हेलोसिनेशंस होते हैं, सेंसरी ऑरा, टिंगलिंग, नमनेस, आपके बॉडी में आपको टिंगलिंग फील होगा पूरे हाफ ऑफ द बॉडी में, जैसे पैरालिसिस अटैक में होता है वैसे ही होगा। मोटर ऑरा, इसमें आपको वीकनेस होगा, आपके बॉडी में बहुत सारा पेन होगा, एक ही बॉडी में आपको रहता है, हेड पेन होता है, नेक पेन होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड दुखता है, ये सारे सिम्टम्स है हेमिप्लेजिक माइग्रेन। ना, नेक्स्ट इज रेटिनल माइग्रेन। इसमें क्या होता है आपको टेम्पररी और पार्शियल और कंप्लीट विजन, एक ही आंख में आपको विजन लॉस जैसा फील होगा। इसमें आपके डल एक्ने होगा बिहाइंड द आई दैट में स्प्रेड टू रेस्ट ऑफ द हेड। ये जो आपको नर्व्स दिख रहे हैं ये आई से कनेक्टेड होता है और फिर आपके हेड तक जाता है। ओके, ये आपको कई मिनट से कई घंटों तक ये लास्ट करता है, कई कई महीनों तक आपको लॉस करता है, और इसके आपको सीवियर इश्यूज भी आते हैं, इसलिए आपको ये कहा जाता है कि आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर का सपोर्ट लो ना। नेक्स्ट इसमें आता है क्रोनिक माइग्रेन। ये आपका 15 डेज से 1 महीने तक आपको रहता है। इसमें आपको फ्रीक्वेंटली चेंजेस, आपके सीवियरिटी ऑफ जो पेन है आपको उसमें आपको चेंजेस आते हैं। हेड एक आपका 4 घंटे से 5 घंटे तक आपको रहता ही है इसमें, और कई कई दिनों तक क्रोनिक माइग्रेन में हेड पेन रहता है, and that is unbearable. Now, next is migraine with brain stem aura. इसमें क्या कहता है, आपका जो वर्टिग्रो है उसमें आपको प्रॉब्लम आता है, उसमें आपको बहुत सारे पेन होते हैं। फिर आपका स्पीच, उसमें आपको प्रॉब्लम आता है। विजन, आपको दो दो डबल विजन दो दो दिखने लगते हैं। लॉस, आपके जो बैलेंस है उसमें आपको लॉस होता है। फिर ये सब आपको सिम्टम्स हेडेक के पहले होंगे। फिर हेडेक होता है, हेडेक आपका जैसे ही हेडेक चालू होता है वो आपके बैक ऑफ द हेड में होता है, पूरा आपका बैक ऑफ द हेड पेन करता है। आपको स्पीकिंग में इनएबिलिटी होती है, आपके कानों में ऐसा आपको लगता है कि कुछ तो भी मुझे सुनाई दे रहा है, हमेशा आपको रिंगिंग जैसा आवाज सुनाई देगा, आपको नॉशियाटिक वॉमिटिंग फील होगा, पर आप वो कर नहीं पाओगे, जस्ट यू विल फील दैट कि अब मुझे हो रहा है। नेक्स्ट, स्टेटस माइग्रेन। दिस इज अ सीवियर टाइप ऑफ माइग्रेन, ये आपको 72 आवर्स तक रहता है। इसमें आपका हेड पेन होता है, नॉशियाटिक फीलिंग होता है, एंड दिस इज वेरी एक्सट्रीमली बैड। इसमें आपको दवाई लेनी पड़ती है, मेडिटेशन
विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं। Now, next is there are four phases of migraine. First type is prodrome. इसमें आपको टाइम रहता है 3 घंटे से कई दिनों तक आपको रहेगा। इसके जो सिम्टम्स है वो है प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन, इरेटेबिलिटी, डिप्रेशन, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड रीडिंग। आपको नींद आने में प्रॉब्लम आएगा, बार बार आपको यॉर्निंग फील होगा, नौशिया फील होगा, फटीग, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, फूड कार्विंग, इंक्रीज यूरिनेशन, मसल स्टिफनेस। सेकंड है ऑरा। ये आपको 5 मिनट से 60 मिनट्स तक रहता है। इसमें आपको सीइंग, ब्राइट फ्लैशिंग, डॉट्स, स्पार्कल्स, आपको लाइट ऐसे स्पार्कल के जैसे फील होगा, ब्लाइंड स्पॉट इन योर विजन, नमनेस और टिंगलिंग स्किन, स्पीच आपकी बदल जाएगी, रिंगिंग इन योर ईयर्स, टेम्पररी विजन लॉस, सीइंग वेवी और जैजी लाइन, आपको ऐसे लाइंस फील हो गया, आपको दिखाई देंगे कि मुझे ऐसे सब हिलते हुए दिख रहा है, चेंजेस इन स्मेल और टेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज हेडेक। ये आपको 4 घंटे से 72 आवर्स तक रहता है। सेंसिटिविटी टू लाइट, नॉइज, ऑडर्स, नोशिया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, फीलिंग वार्म और कोल्ड, आपको हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेस आएंगे, पेल स्किन हो जाएगी, आपको फीलिंग टायर्ड जैसा होगा, आपकी स्पीच बदल जाएगी, डिजीनेस एंड ब्लड विजन, टेंडर स्कैल्प, डायरिया, फीवर। नाउ लास्ट इज पोस्टड्रोम माइग्रेन। ये हैंगओवर का माइग्रेन रहता है, माइग्रेन का हैंगओवर रहता है। ये आपको 1 से 2 दिन तक रहेगा। आपको कंसंट्रेशन में बहुत सारे दिक्कत आते हैं। हैंगओवर मीन्स हैंगओवर के जैसे ही रहता है ये। आपको फीलिंग डिप्रेस्ड, यू विल फील डिप्रेस्ड, फटीग जैसा होगा, आपको कई चीजें समझ में नहीं आएगी कि ये क्या चल रहा है। फीलिंग यूफोरिया मीन्स आपको अलग सा फील होगा कि मुझे ये क्या हो रहा है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, पर आप नहीं कर पाओगे उस टाइम पे ना। नेक्स्ट इज, इसमें आपको नेक्स्ट है हाउ कॉमन आर दिस माइग्रेन हेडेक। दीज आर नाउअडेज कॉमन, ज्यादा करके वुमन ये फेस करते हैं, मेन को कम रहता है इसमें। हु गेट्स माइग्रेन, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट किसको माइग्रेन होगा। छोटे बच्चों से बड़ों तक किसी को भी माइग्रेन रह सकता है। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये अपने जेनेटिक्स में प्रॉब्लम करता है, जेंडर में प्रॉब्लम आता है, स्ट्रेस लेवल में आपको आता है, स्मोकिंग अगर आप करते हो तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है आपको। नेक्स्ट, हाउ ऑफन डू माइग्रेन हैपन। माइग्रेन आपको बता के नहीं आता है, ये कभी भी आपको आएगा, वंस अ ईयर, वीक में 1 बार भी आ सकता है, वीक में 4 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है। इसके हेडेक्स अलग, हेड पेन अलग तरह के रहता है। कई बार आपको हेडेक फील होगा या नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। जैसे आप कह सकते हैं कि माइग्रेन, वो आने वाला जो माइग्रेन है उसका मूड कैसा है, उसके उसके ऊपर है सब कुछ, कि आपको कैसा पेन देना है, हल्का वाला पेन देना है या अच्छा वाला पेन देना है, उसके ऊपर है सब। आर माइग्रेन हेरिडेटरी? yes, sometimes it may be hereditary or it may not be hereditary. Can children get migraine? yes, nowadays children get migraine क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। छोटे बच्चों को बर्गर पिज्जा के अलावा कुछ दिखता नहीं है, कुछ आता नहीं है, और जेनेटिक भी रहता है बहुत सारे केसेस में। हु शुड आई सी अबाउट माइग्रेन पेन? आपको ये प्राइमरी लेवल पे डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। कई सारे डॉक्टर्स ऐसे रहता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ये क्या बोल रहे हैं, इनको क्या हो रहा है। ही विल गिव यू, अगर आप बोलोगे मुझे नॉशियाटिक फील हो रहा है, कुछ एसिडिटी की दवाई देंगे, बोलेंगे ये कोर्स पूरा करो, यू विल फील बेटर, पर यू हैव टू टेक प्रॉपर हेल्प। आपको न्यूरोलॉजी के पास ही जाना पड़ता है,
या गायनाकोलॉजिस्ट। अगर प्री मेंस्ट्रुअल माइग्रेन आपको रहेगा तो आपको यू हैव टू गो टू गायनेक ओनली। अगर आपको लगेगा कि ये हेडेक है, कई महीनों तक, कई सालों तक चलेगा, तो एमडी कुछ नहीं कर पाएगा। आपका जो नॉर्मल वाला जो डॉक्टर रहते हैं, आप अगर बुखार हो गया उनके पास गए, वो वाले डॉक्टर एमडी आपको कुछ नहीं करेंगे। उसमें आपको न्यूरोलॉजी के पास ही आपको जाना पड़ेगा। वो लोग आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, आपकी लाइफस्टाइल आपको चेंज करने पड़ेगी, तो ही आप ये माइग्रेन पेन से रिलीफ पा सकते हो। नाउ, do migraine cause permanent brain damage? If you have migraine, does that mean I will get another disease? No. Migraine doesn't cause any brain damage. Then is risk कि आपको स्ट्रोक, कई एक आध दूसरा लोगों को स्ट्रोक आ सकता है, जैसे पैरालिसिस आ सकता है, या हाइपरटेंशन की वजह से, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको माइग्रेन में हाइपरटेंशन भी होता है। तो अगर आपका बीपी, हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ गया, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक आपका लेवल बढ़ गया, तो यू मे गेट पैरालिसिस अटैक। पर ये वन ऑफ, टू ऑफ लाखों में एक दूसरे को होता है, सबको होगा ऐसा नहीं रहता है ना। हाउ माइग्रेन आर डायग्नोज्ड? आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, आप आपके सारे मेडिकल हिस्ट्री, आपके हेड पेन के बारे में आप डॉक्टर को बताओगे कि ऐसे ऐसे मुझे हेड पेन होता है, आपके सिम्टम्स बताओगे, आपका हेड पेन कैसा होता है वो डिस्क्राइब करोगे, आपका हेड पेन कितना सीवियर रहता है, आपको कब हेड पेन आता है, आपको पीरियड्स के पहले आता है, पीरियड्स के ड्यूरिंग आता है, पीरियड्स के बाद में आता है, हेड पेन आपका किस लोकेशन पे है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मग ते काय मला इन्फॉर्मेशन दे दिली अगं मग हेड पेन रोशनी जी प्लीज पॉन्डिंग रहता है, पल्सिंग रहता है, हेड पेन आपका कितना बेटर से वर्स होते जाता है, आपको उस पे ध्यान देना है। हाउ ऑफन, कितने बार आपको वो माइग्रेन का हेडेक आता है। टॉक अब आपका जैसा लाइफस्टाइल है, आप क्या एक्टिविटीज करते हो, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, अगर आप घर पे रहते हो तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इफ यू आर वर्किंग उधर आपको कुछ स्ट्रेस है क्या अलग लेवल के, ये है। और सबका माइग्रेन अलग अलग सिचुएशन पे वो डिपेंड करता है। फिर आपको वो मेडिटेशन से आपको रिलीफ मिलता है। आपको माइग्रेन स्ट्रोक आने के पहले, आने के बाद, उस जब वो आपको स्ट्रोक चल रहा है, पेन चल रहा है, आपको कैसा लगता है, आपको आपके फैमिली मेंबर में किसी को ये था, कुछ याद होगा, तो यू हैव टू टेल योर डॉक्टर, take a help of your healthcare provider. Now, next is prevention. Can migraine headache be prevented? Actually, there is no cure for migraine headache. Okay? तो आप आपकी जैसे जैसे आप रिकॉर्ड रखोगे कि मुझे ये टाइम पे माइग्रेन का अटैक आता है, आपके जो ट्रिगर्स है वो आप समझ में लेके आओगे। आप ये फूड खाते हो, अगर मैंने एक खाना मिस कर दिया, स्किप कर दिया, तो वो टाइम पे मुझे आता है। आपकी अगर नींद नहीं अच्छे से होती है, कितने रेगुलर इंटरवल से आपके आता है, आप पानी कितना पीते हो, आपकी एक्सरसाइज आप करते हो कि नहीं, आपका हैवी वेट है क्या, इस पे आपको पूरा ध्यान देना है। स्पेशली ट्रिगर्स, आपको पता है कि ये करने से मुझे ये ट्रिगर होता है, सो अवॉइड दैट थिंग ना। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। तो आपको क्या करना है, माइग्रेन आने से आपको क्या सिम्टम्स करने हैं, इसमें आपको बताया मेडिटेशन लेना है, मसल रिलैक्सन मीन्स आपको कई सारे आपको मसाजेस है वो आपको लेने से अच्छा होता है। अगर आपको नोशियाटिक फील होता है, आप दवाई लो, पेन किलर्स लो। डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं कि आपको अगर माइग्रेन का आपको लग रहा है कि स्ट्रोक आने वाला है, उसी टाइम पे आप दवाई ले लो, कि मैं अभी बाद 1 घंटे के बाद लूंगा, 2 घंटे के बाद लूंगा, ऐसे नहीं रहता है। आपको तभी तभी के तभी दवाई लेनी है।
सेल्फ केयर क्या कर सकते हो आप? लाइट बंद करो। जिंजर, जिंजर एक ड्रग की तरह आपको काम करता है, वो आप ले लो, खाओ। यू हैव टू, आपको चाय में डाल के ले लो, या उसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, वो खाओ। कैफीन, कैफीन यानी प्रॉपर कैफीन नहीं लेना, आपको कॉफी लेने हैं, उससे आपको अच्छा लगेगा। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, आप गर्म पानी से आपको अच्छा मिल लगता है तो नहा के देखो। कोल्ड थेरेपी, जो आइस बैग्स रहते हैं वो आपको मसल रिलैक्सेंट की तरह फील कराएंगे, वो ले लो। नेक्स्ट, ये सेल्फ केयर है, ये आपके घर में ही चीजें आपको मिलेंगी। जिंजर, विटामिन B2, लेवेंडर ऑयल, ये लगाओ, पाम्स को लगाओ, ईयर के पीछे लगाओ, तो उससे स्मेल्स, वो लेवेंडर ऑयल के स्मेल से आपको रिलीफ के जैसा फील होगा। मैग्नीशियम, आपके फूड में मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ाओ। कैमोलाइन, ये आपके इंटेक बढ़ाओ। ये कहाँ से मिलेगा? मिल्क, एग, चीज से आपको मिलेगा। विटामिन D, आपके खाने में आप विटामिन D का इंटेक बढ़ाओ। अभी सेल्फ केयर के लिए आपको क्या करना है? माइग्रेन के लिए, खुद के लिए आपको क्या करना है? स्पेंड टाइम इन नेचर, कीप अ सिम्टम जर्नल। मीन्स आपको क्या करना है? आपको आपके सिम्टम्स लिख के रखने हैं कि ये करने से मुझे ये होता है, ये नहीं करने से मुझे नहीं होता है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ईट ऑन रेगुलर शेड्यूल, एक शेड्यूल रखो कि मुझे 11 बजे खाना खाना है, मतलब खाना है। बी केयरफुल विथ अल्कोहल, अगर आप अवॉइड कर सकते हो देन इट इज गुड, बट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट। हैव गुड स्लीप हैबिट्स, अच्छे से नींद ले लो। ट्राई एक्यूप्रेशर्स, रिड्यूस स्क्रीन टाइम, avoid light and noise, keep moving, try hot and cold compressions, take a deep breathing, consider cutting down on caffeine, avoid MSG, work with physical therapist, prioritize your energy, आपको एनर्जी आपको कहाँ पे आपको लगानी है वो आप प्रायोरिटाइज करो। टेक मेडिटेशन एज डिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर। नाउ नेक्स्ट, जब आपको माइग्रेन होता है तो आपके उसका आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? आपको हेलोसिनेशंस होते हैं, विजुअल आपका डिस्टरबेंस होता है, हेड पेन होते हैं, ईयर एक्स होते हैं, फोबियाटिक फीलिंग होता है, फोटोफोबियाटिक फीलिंग होता है, साइनस पेन होता है, प्रेशर, हॉट फ्लैशेस होते हैं, बॉडी चिल आपकी, बहुत सारा आपको ठंडी, अचानक से ठंडी बजने लगता है, अचानक से गर्मी लगने लगता है, डिजीनेस, वर्टिगो में आपके पेन होता है, टेम्पररी पैरालिसिस ऑफ द लिम्स, रिड्यूस मेमोरी, आपको ऐसा लगता है कि अभी मैंने ये काम किया था पर अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा है मैंने क्या किया था। कंसंट्रेशन, मूड डिसऑर्डर, बार बार आपका मूड फ्लक्चुएट होने लगता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, मोशन इंटॉलरेंस। ना, जॉ पेन होता है आपको, इंक्रीज यॉर्निंग, आपको बार बार फील होता है कि मैं यॉर्निंग करूं, नेक पेन, शोल्डर पेन, सेंसिटिविटी टू टच, अगर आप टच करोगे तो ऐसा मुझे लगता है मुझे अलग ही फील हो रहा है। आपके पेट में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड प्रॉब्लम्स होता है, आपको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए लगता है, जॉइंट पेन होते हैं, नीज में पेन होते हैं, शोल्डर्स में पेन होते हैं, आपको नमनेस, टिंगलिंग। नाउ नेक्स्ट, योगिक डाइट, इसमें आपको डाइट कैसा रखना है। नाउ अब आता है योगा का पार्ट। नाउ हाउ कैन योगा हेल्प यू टू गेट रीड ऑफ दिस माइग्रेन, या आपको पेन, आपका जो बॉडी में आपको पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसमें आपको योगा कैसे हेल्प करेगा ये आगे जाके आपको पता चलेगा। नाउ योगिक डाइट के अनुसार आपको फ्रेश, ऑर्गेनिक और सात्विक फूड खाना है। तो फ्रेश क्या होगा? इसमें आपको फ्रेश यानी 2-3 घंटे में आप जो बनाओगे उसे आपको खाना है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी जिसमें नो प्रिजर्वेटिव है,
घर में बनाया हुआ खाना जो फ्रेश है, ताजा है, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, कम से कम मसाले, कम से कम ऑयल, इस ये ऑर्गेनिक में आएगा। और सात्विक में क्या आएगा? फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल, अवॉइड कंजम्पशन ऑफ मीट, एग्स, ऑनियन, गार्लिक, फ्राइड फ्रूट्स एंड अल्कोहल। ना ये ये सब आप खा सकते हो, लेंटिल्स खा सकते हो, रेड पेपर्स, नट्स। सुबह आपको, अब अगर आपको काले ड्राइड ग्रेप्स आपको पता है, हिंदी में हम उसको काला मनुका बोलते हैं, रात को अगर आप उसको भिगाओगे, सुबह आप वो रोज खाओगे, देन यू विल गेट relief from pains of migraine. Sometimes it may help you. Spinach, carrot, broccoli, yogurt, berries, eggs, beans, ये आप सब खा सकते हो ना। ट्रिगर्स एंड कॉजेस, ये अगर आप ट्रिगर्स करते हो तो आपको क्या होता है? ट्रिगर्स यानी कैफीन से आपको ट्रिगर आता है, अल्कोहल, चॉकलेट, मेंसेस, पीरियड्स, कई लोगों को पीरियड्स आने के दौरान, पीरियड्स होने के बाद, पीरियड के दौरान माइग्रेन्स के अटैक आते हैं। स्ट्रेस लेवल, लैक ऑफ स्लीप, बारोमेट्रिक चेंजेस, आपके बॉडी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से। कॉजेस क्या आ सकते हैं इसके वजह से? ब्रेन इंजरी आ सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन, लिवर इम्बैलेंसेस, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड mental imbalances. Now, integrated approach of yoga of neurological disorders. 5 कोशाज रहते हैं, तो ये सारे 5 कोशाज है हमारे बॉडी में। ये पांच कोशाज एक दूसरे को लिंक्ड है। There are 5 koshas, that is Panchakosha. All are interconnected to each other. So we have to balance all the koshas. It becomes necessary to work on these levels of their existence. As explained, it is explained that the disturbance in Mananmay Kosh, ये मननमय कोश है हमारा, it is manifested themselves in आनंदमय कोश। अगर ये मननमय हमारा कोश प्रॉपर नहीं रहेगा तो लास्ट वाला कोश आनंदमय कोश, फिजिकल शीत में हमें प्रॉब्लम आएगा। चले वातम चले चित्तम, जैसा हमारा मन विचार करता है वैसा हमारा शरीर विचार करता है। ये पांचों कोश अगर आप ठीक रखोगे तो आपका पूरा बॉडी का सिस्टम, पूरा लाइफ एग्जिस्टेंस प्रॉपर रहेगा। और अन्नमय कोश आपका अगर प्रॉपर रहेगा तो प्राणमय कोश भी आपका अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट इज अन्नमय कोश, दैट इज फिजिकल बॉडी। सेकंड इज प्राणमय कोश, लाइफ फोर्स शीट। थर्ड इज मननमय कोश, दैट इज मेंटल शीट। फोर्थ इज विजनमय कोश, दैट इज विजडम शीट। आनंदमय, that is bliss body. Now, Annamaya kosh, this is the first and outermost layer of the 5 koshas, that is physical layer. हम जो physically work करते हैं तो ये हमारे first layer of koshas के लिए help करता है। बैलेंस, हमारी योगा के लिए बैलेंस देता है। Balances the koshas manifest in the physical body. When balanced, we feel a sense of stability, welling and lightness in the body. फिजिकल अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज प्राणमय कोश, दिस इज द सेकेंड लेयर। इसमें हमारी प्राणिक एनर्जी एक्सर्ट होती है। इसमें हमारा 5 प्राणास अफेक्ट होता है, हाउ वी फंक्शन। ओके, 5 प्राणास और गवर्न द एनर्जीज, गवर्न करते हैं हमारे ह्यूमन सिस्टम के लिए। बैलेंस इन योगा थ्रू प्राणायाम विद द बंधास, अगर हम प्राणायाम करेंगे बंधास लगा के तो ये हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होगा।
और with it is associated with breathe and pran or life force or energy. Now, next is Mananmay Kosh. This is the third layer, that is mental layer or conscious mind. This is related to well-being of our physical and energetic body, balanced by chanting. हमें बुक्स रीड करनी है एजुकेशन के बारे में, आइडियाज रीड करने हैं कई सारे लोगों के। ये हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल पे हेल्प करता है। चैंटिंग करना है, मंत्रास कहने हैं, सात्विक लाइफ जीनी है, हमारा माइंड हमें स्टेडी रखना है, रीडिंग करना है, योगा के टेक्स्ट रीड करने हैं, ये हमें बहुत सारा मदद करेगा। फोर्थ इज विजनमय कोश। दिस इज द फोर्थ लेवल. This is the wisdom body. This is the wisdom of our true nature. Primary practice to balance this kosha is meditation. Now, fifth is Anandamay kosh. This is the bliss body. ये हमारे माइंड से कनेक्टेड रहता है। अगर हमारा माइंड अच्छा रहेगा तो हमारा जो फर्स्ट लेयर था उसके लिए ये मदद करता है, अन्नमय कोश तक ये जाता है। अगर हमारा माइंड स्टेडी है तो हमारा बॉडी भी स्टेडी रहेगा ना। कंसेप्ट ऑफ आदि एंड व्याधि। व्हाट इज आदि? जो हमारा मेंटल एप्लीकेशंस है, सफरिंग्स है, वो दैट इज आदि। व्याधि क्या है? हमारा डिजीज है, हमारे शरीर में जो हमें प्रॉब्लम्स है, दैट इज व्याधि। लाइफ एज अ जीवा इज फुल ऑफ चेंजेस. Each change is associated with some pain, physical, financial, or emotional. If that pain is repeated mentally due to attachment of body, it leads to suffering. तो हमारे माइग्रेन में हमारा आदि और व्याधि बहुत हमें मदद करता है। तो हमें बहुत अच्छे से सोचना है कि मेंटली हमें कैसा रहना है, फिजिकली हमें कैसा रहना है, तो वो हमें इफेक्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज योगा. हाउ कैन योगा हेल्प यू इन कंट्रोलिंग माइग्रेन? इसमें भी हमें बताया है कि योगा आपको माइग्रेन कंट्रोल करने में मदद करेगा. इट विल नॉट क्योर इट, कंट्रोल करेगा आपका जो लेवल है। अगर आपको 100% पेन हो रहा है तो आपको वो 70%, 50%, 40-30 तक वो आपको ले जा सकता है, बट क्योर करेगा ऐसे किधर भी लिखा नहीं है। नो डॉक्टर कैन से कि आप ये दवाई ले लो आप क्योर हो जाएंगे। वैसे ही इधर है बताया कि इट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग माइग्रेन। तो आपको क्या करना है? प्रेयर करना है, षट क्रिया करना है, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा एंड मेडिटेशन। ना तो हमें कौन से प्रेयर करने हैं? प्रेयर क्यों करना है? प्रेयर आपको सेल्फ कंट्रोल करने के लिए मदद करेगा, आपके रिलेशनशिप्स बढ़ाएगा, एबिलिटी टू कोप अप विथ योर स्ट्रेस। आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए आपको बहुत मदद करेगा। सिर्फ 10 मिनट आप ओमकार चैंटिंग करो, इट विल हेल्प यू। ओमकार चैंटिंग उसके वाइब्रेशंस है वो आपको बहुत सारा ज्यादा लेवल तक आपको हेल्प करेगा। ओके ना, डिप्रेशन से दूर कराएगा। आपका जो पेन है, आपको जिससे पेन मिल रहा है उससे आपको पेन कंट्रोल लाने के लिए मदद करेगा एंड प्रोमोट्स लॉन्गर लाइफ। ना सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम से हमें बेनिफिट क्या मिलता है? अवेयरनेस, डेवलपिंग अवेयरनेस, प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस। हम जो आसन्स करते हैं उसके लिए प्रिपरेटरी आपको हेल्प करेगा। opens out major joint, relaxes the muscles of the body, practiced by anyone, beginner, advanced level। जो कोई भी सूक्ष्म व्यायाम कर सकता है, बिगिनर्स कर सकते हैं, एडवांस वाले कर सकते हैं, यंग एल्डरली पीपल कैन डू सूक्ष्म व्यायाम। नाउ षटकर्मा। षटकर्मा 6 प्रकार के रहते हैं। पहला है नेति, धौती, बस्ती, नौली,
कपालभाति, त्राटक। हम जो ये 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे, इसमें हम नीति करेंगे, त्राटक करेंगे, 2 प्रकार के त्राटक करेंगे और हम कपालभाति करेंगे ना। These are some yoga asanas for migraine. This will help you. Okay. This is Surya Namaskar. Surya Namaskar is boon for us. These are some mudras, yoga mudras, which we will be practicing. इसमें आपको कई सारे, this has been proven कि ये मुद्रा आप लगा के प्राणायाम करोगे, then you will feel good. ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, these all mudras have been proven that it can help you to get rid of, control migraine and depression. These are some pranayama which we will be practicing. That is Surya Bhedan, Ujjayi, Shitkari, Shitali, Brahmari, Basrika. Murcha and Palvali are for advanced level, but this help, so it has been written over here. Then these are some acupressures with which we will be doing in our practice. Meditation surely helps you to get control of migraine. Om chanting is believed that it helps you in spiritual, physical and mental level. These benefits are reduced stress, anxiety. Chanting Omkar mantra can help you in calming the mind, reduce stress, anxiety and promoting relaxation. प्रणव जाप, आपको प्रणव जाप करना है। इसमें ये जाप 3 प्रकार के रहते हैं. वी विल बी प्रैक्टिसिंग देम ना. योग निद्रा, हम योग निद्रा भी करेंगे हमारे प्रैक्टिस में ना. यहाँ पे जो लोग आए हैं, किन लोगों को माइग्रेन है, आप अपने कैमरे चालू करो, देन वी विल स्पीक. आपको कई लोग जानते हो जिनको माइग्रेन है, देन वी विल श्योरली हेल्प देम. Hello. हेलो. Yes, this is Mitali, and I'm having migraine pains since I was in 10th standard, and I am 40 years old. यू आर 40 years old. सो आपने Yes. किसको दिखाया, किनको दिखाया? मैंने पहले तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाके आया, बट ऑलवेज इट वाज लाइक समथिंग एसिडिटी, indigestion, these kind of things, and always it's like a painkiller और some acidity heal करने वाले यही रहते हैं. And then recently, like 5 to 7 years ago, one of the doctors said that this is migraine pain and there is no cure for it. When you start seeing the symptoms, which I know, first my eyes get droopy. Then when my eyes get droopy and I feel heavy, and my eyes started feeling very heavy, like there is something on my eyelids. So at that time, I realized that I'm going to have migraine pain. So she said, whenever this is your first symptoms, just take painkiller. Meditate. Yeah. So my first preference is Crocin. And if it's not curing with that, then I go for something else, like Okay. Saridon or something like that. बट एज पर माय नॉलेज क्रोसिन देते नहीं है. आपने किसको दिखाया, कौन से डॉक्टर को दिखाया? She was general practitioner. It नो was नो, not सो यू हैव टू गो टू न्यूरोलॉजी. okay. आप वो दे विल गिव यू, प्रिस्क्राइब यू प्रॉपर मेडिटेशन. Okay. माइग्रेन के लिए क्रोसिन इज नॉट अ रीजन. क्रोसिन से आपको एसिडिटी होगा, अलग लेवल पे आपको प्रॉब्लम, अलग से प्रॉब्लम आपको अटैच में चालू होगी. Okay. ओके, सो यू गो टू प्रॉपर डॉक्टर. Okay. वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कैसा दवाई लेना है, आपको लाइफस्टाइल आपको कैसे चेंज करनी है. देन आपके जो सिम्टम्स अभी आपको महीने में आते हैं क्या, 4 महीने में, 5 महीने में आते हैं? मुझे
ऐसे एज सच कुछ नहीं रहता, लेकिन मेरा ये है कि अगर कुछ स्ट्रेस है हम्म। और अगर स्पेशली अगर मेरी रात को नींद पूरी नहीं हुई है, देन इट ट्रिगर्स। ओके। सो मतलब बेसिक मेरा अभी ये आपका ज्वाइन करने का रीजन है कि मेरा रात का नींद अच्छे से हो। ओके। सो तो जाती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी अगर मुझे 3:30-4 बजे अगर मेरी नींद खुल जाती है तो फिर मुझे नींद नहीं आती, एंड उसके बाद वो ट्रिगर हो जाता है। यस। हाँ। तो आपको आपका लाइफस्टाइल पहले बहुत चेंज करना पड़ेगा। हम्म। देर आर फ्यू प्राणायाम्स कि आपको वो नींद, आप जब सोओगे उसके पहले आपको वो प्राणायाम करने हैं। हम्म। ओके। चैंटिंग रहते हैं बहुत सारे, ओके। और फिर आसन्स भी रहते हैं कि आपको वो डीप स्लीप में लेके जाएंगे। ठीक। अगर आपको रात को भी 3-3:30 बजे अगर आप जगते हो, हम्म। ठीक है, तो आपको उस समय भी मोबाइल तो पहले देखना नहीं है। राइट। ठीक है। आपको उस समय भी प्राणायाम 1-2 रहते हैं कि आपको वो करने हैं। ओके। आप वो करते समय ही आप नींद में चले जाओगे। ठीक है। दैट इज वॉट आई डू। आई पर्सनली ऑल्सो हैव माइग्रेन, कि मैं ये सब कुछ करती हूँ तो उसके बाद मुझे रिलीफ होता है। ओके। सिंस 4-5 years मुझे भी ऐसे 5-6 साल पहले होने चालू हो गया। फिर मैंने योगा करने लगी, फिर धीरे धीरे मैं मेरा लाइफस्टाइल जैसे जैसे कम करती गई, तो अभी मुझे साल में एक आधा स्ट्रोक आता है माइग्रेन का। गुड। आता नहीं है, वैसे पेन होता नहीं है। हाँ। मुझे जैसे जैसे समझ में आने लगता है, देन आई जो ट्रिगर होते हैं उसके कॉजेस फाइंड आउट करती हूँ, एंड देन आई ब्रेक डाउन टू इट। अगर मुझे लग रहा है कि ये खाने से मुझे ये होने वाला है, देन आई अवॉइड। ओके। मुझे ये इधर इतना, मैं अगर मुझे धूप में अगर मैं जाती हूँ, हम्म। सनस्ट्रोक होता है, तो आई नो कि मुझे शाम को हेडेक पेन होने ही वाला है। अगर मैं ज्यादा लाइट में बैठूंगी तो आई नो कि मेरी आज नींद कम होने वाली है। दैट टाइम आई डू प्राणायाम, और फिर मुझे वो हेल्प करता है। कई लोगों को हेड पेन, ऐसे माइग्रेन में ही नहीं, हेड पेन के लिए भी वो प्राणायाम बहुत सारे हेल्प करते हैं, आसन्स भी बहुत सारे हेल्प करते हैं। ओके। यू गो टू प्रॉपर डॉक्टर, आप आपका सब प्रॉपर से रूटीन चेकअप करो, फिर आपको वो प्रॉपर गाइड करेंगे। क्रोसिन से एसिडिटी बढ़ती है एक्चुअली। ओके। दैट इज नॉट, क्रोसिन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर माइग्रेन ओके। एज फाइन। पर माय नॉलेज। ओके। अभी मेरे योगा तो मेरा शुरू हो चुका है। ओके। उनसे ही थ्रू आपका ये मुझे रेफरेंस मिला था। गीता वेलनकर है ना, शी इज अटैच्ड टू आरएम योगा आई गेस। ओके, तो गुड गुड। उन्होंने ये सजेस्ट किया था दैट आई शुड अटेंड योर सेमिनार। ओके, गुड गुड। ओके, थैंक यू। थैंक यू। एनीबडी एल्स? मैम, आपने जो बोला ये हेडेक में भी जो प्राणायाम करते हैं वो माइग्रेन में जो प्राणायाम करते हैं वही सिंपल हेडेक हो तो भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं ना, वही हेडेक अलग में है? पेन किलर पहले लेना पड़ेगा आपको। अब जब आपका हेडेक जाएगा तब आपको वो करना है। हेडेक अच्छा, में जाने कुछ के नहीं बाद? करना है। हेडेक में आपको जब पेन हो रहा है तब आपको हाँ। सिर्फ शांत बैठना है। जस्ट अच्छा। आपको योगा निद्रा में जाना है। आप मन में ओम चैंटिंग कर सकते हो, ओम चैंटिंग इज द बेस्ट। पर आपको प्राणायाम, योगासन ये सब नहीं करना है तब। मेडिटेशन विल ओनली हेल्प यू दैट टाइम। ठीक है। Okay. क्योंकि योगेंद्र उस, जी, एक हाँ, बार फॉर्म फिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। मैंने यस, शेयर कर दिया है। ओके। हम चैट बॉक्स में आप सबको फीडबैक फॉर्म मिला है, आपको वो भरना है ना। हमारे पास टाइम है तो आज हम लोग प्रणव जप से स्टार्ट करेंगे। ओके, आप सब कैमरा आपके चालू करो, इफ यू आर फ्री आप कर सकते हो तो आप चालू करो। आज हम प्रणव जाप करेंगे। फर्स्ट डे है, ओमकार चैंटिंग से स्टार्ट करेंगे हमारा आज का क्लास। ओके, एंड करेंगे एक्चुअली। प्रणव जाप 3 स्टेप्स में रहता है, दैट इज वैखारी जप, उपांशु जप एंड मानसिक जप। मन वैखारी जप यानी आपको लाउडली ओम चैंटिंग 11 टाइम्स करना है। उपांशु जप यानी विस्परिंग साउंड में आपको ओम चैंटिंग करना है 11 बार। एंड थर्ड इज मानसिक जप, मन ही मन में
आपको 11 बार ओमकार चैंटिंग करना है। सो हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा यानी टिप ऑफ द फिंगर्स को सिर्फ ज्वाइन करना है और बाकी के जो 3 फिंगर्स है जो ज्वाइन करना है और आपके नीज पे रखना है, घुटनों पे आपको आपके हाथ रखना है। जिन लोगों ने चश्मा लगाया है उसे उतार दो। आईज क्लोज, बैक स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू ग्राउंड। हर बार आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते समय पहले हम वैखारी जप करेंगे। एक्सहेल करते समय लाउडली 11 टाइम्स ओम ओम कहेंगे लाउडली। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। इनहेल ओ, 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 feel the vibrations of Vaikari Japa. Next, we will be doing Upanshu Japa, that is whispering sound में ओमकार chanting करना है 11 बार। Let's start. Om, 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 Om. Now, हम मानसिक जप करेंगे 11 बार। आपके मन ही मन में आपको ओमकार चैंटिंग करना है। शुरू करेंगे। Feel the vibrations of Omkar chanting throughout your body. आपसे आपके हेड से लेके टोज तक वाइब्रेशंस को फील करेंगे। डू नॉट ओपन योर आईज।
आपके भ्रूमध्य दृष्टि में आपको ओम की प्रतिमा दिख रही है। जस्ट फील द वाइब्रेशंस और बंद आंखों से आपके भ्रूमध्य दृष्टि में ओम की प्रतिमा आप देखेंगे। डू नॉट मूव योर बॉडी। आपको ओम चमकता हुआ गोल्डन कलर में आपको दिख रहा है। जस्ट फील इट। मन में अगर आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो उन्हें आने दो और उन्हें जाने दो। आपको बंद आंखों से सिर्फ आपके भ्रूमध्य दृष्टि में आपका कंसंट्रेशन लगाना है। अब हम शांति पाठ करेंगे। आंखें खोलेंगे नहीं। आंखें बंद ही रखिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओ शांति शांति शांति। Rub your palms to each other. Cup your eyes. Slowly remove your palms. Slowly, steadily, gently open your eyes. Thank you. Hope you like the class. मीना जी, आपने जैसे पूछा Thank you. कि आपको अगर माइग्रेन है, हेड पेन हो रहा है और उस समय क्या करना है। आपको पहले तो मेडिटेशन लेना है एंड योगा विल डेफिनेटली हेल्प यू कि आपके जो हेडेक है उसको आपको होने ही ना दे, उधर तक आपको जाने ही ना दे, उसके लिए हेल्प करता है ये। ओके। नहीं, माइग्रेन वाला नहीं, मैं जब नॉर्मल हेडेक की पूछ रही थी। नहीं, नॉर्मल भी आपको माइग्रेन में भी जो करते हैं। नॉर्मल में भी आपको मेडिटेशन ही लेना पड़ता है और इट विल हेल्प यू कि आपको होने ही ना दे। ठीक है। थैंक यू। Thank you, Yugandhara ji. Nice session. थैंक यू एवरीवन। Thank you, Gandhara. Very nice session. Nice Thank you, session. Yugandhara ji. थैंक यू एवरीवन Thank फॉर you. योर सपोर्ट। थैंक यू।